Welcome back to my channel. Today we will do topic cost of capital. Let's start. Cost of capital. Cost of capital is the minimum rate of return that a company requires from its investment in order to ensure that the market value of its shares either increase or remain at the same level. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो हम देखते हैं कि हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या हो रहे हैं और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाने के बाद हमारी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या सेम रह रही है. इट सिंपली रेफर्स टू द मिनिमम प्रॉफिट अ फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू. इसे हम ये कह सकते हैं हमारा मिनिमम प्रॉफिट है जो हम चाहते हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर मिले. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. As an acceptance criteria in capital budgeting decision can be made by considering the cost of capital. हमें एक बेसिस मिल जाता है, एक क्राइटेरिया मिल जाता है जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं. As a determination of capital mix in capital structure decision, there should be proper mix of debt and equity capital in financing firm's assets. While designing an optimal capital structure, the management has to keep in mind the objective of maximum the value of the firm and minimum the cost of capital. Measurement of cost of capital from various sources is very essential in planning the capital structure of any firm. यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें मिले, कैपिटल मिक्स मिले कि हम डेट कितने चाहते हैं और इक्विटी शेयर हमारे कितने होने चाहिए ताकि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ सके. एज अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, the actual profitability of a projected overall cost of capital and the actual cost of capital of funds raised to finance the project. If the actual profitability of the project is more than the projected and the actual cost of capital, the performance may said to be satisfactory. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल जो प्रॉफिटेबिलिटी है किसी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो एक्चुअल हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जिसमें हम फाइनेंस को रेज़ करते हैं, फंड रेज़ करते हैं और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती रहती है. तो हमें पता लग सकता है कि एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं. मीन्स हम अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी. As a basis for taking other financial decision, the cost of capital is also used in making the other financial decision such as dividend policy, capitalization of profit, making the right issue and working capital. इसमें हम other decision जो लेने होते हैं जैसे कितनी dividend policy क्या होनी चाहिए, capitalization profits क्या होने चाहिए, हमारे वर्किंग कैपिटल कैसे, ये सब हम इसमें ले सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इवेल्यूएशन. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टू इवेल्यूएट अ प्रोजेक्ट. Various methods used in investment decision require the cost of capital as a cutoff rate. Under net present value method, profitability index of benefit cost ratio method, cost of capital is used as the discounting rate to determine present value of cash flows. Similarly, a project is accepted if its internal rate of return is higher than its cost of capital. Hence, cost of capital provides a rational mechanism for its मेकिंग द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन. यहाँ पर हम अपना देखते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे करनी है. कट ऑफ रेट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो हम कैसे रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी कैश फ्लो की. हम ये सारी चीज़ें इस एक मैकेनिज्म में देख लेते हैं और ऑप्टिमम डिसीजन बनाते हैं. डिजाइनिंग डेट पॉलिसी. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन दैट इज अ proportion of debt and equity in the capital structure. Optimal capital structure of a firm can maximize the shareholders' wealth because an optimal capital structure logically flows the objective of minimum of overall cost of capital of the firm. यहाँ पर हम एक देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन है वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा, डेट इक्विटी रेशो हमारी क्या होगी, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज़ करें. लॉजिकली हमारा एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव हो जाता है. प्रोजेक्ट अप्रेजल. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट. इसमें हम देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसको हमारा कितना अप्रेजल मिलेगा, कैसे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे. इफ़ द इंटरनल रेट of returns of a project is more than its cost capital, the project is considered profitable. The composition of assets fixed and current is also determined by the cost capital. The composition of assets which earns return higher than cost of capital is accepted. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट पर हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, अगर हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगी तो हम सोचेंगे कि हमारा
प्रोजेक्ट है जो प्रॉफिटेबल है, फिक्स्ड और करंट जो भी हम एसेट्स वहाँ पर लगा रहे हैं उनकी कंपोजिशन एक अच्छी है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हैं। तो ये हमें सारे बेनिफिट्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।